ضلع میں سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پل سیلاب کے باعث بند۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مطابق پل کو ہب ندی سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے شدید متاثر کیا۔ 3 ستونوں کی حفاظتی دیواریں بہہ گئیں۔ سیالکوٹ میں چند روز سے وقفے سے بعد بارش، ریسکیو کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ اہلکار اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ہمہ وقت موجود، گاڑیوں کو دھکا لگا کر محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ پشاور میں بھی مانسون کی حالیہ بارشوں میں انتظامیہ متحرک۔ WSSP، PDA اور TMS کے اہلکار فیلڈ میں موجود۔ کمشنر پشاور کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے نکاسی یافتہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاڑکانہ اور گردنوا کے کئی علاقے بھی بارش سے متاثر۔ گزشتہ رات 1 گھنٹے کی بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ دوسری طرف بارش کا پانی سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، راہگیر مشکلات سے دوچار۔ شیخوپورہ میں کاغذ ساز فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا فقدان۔ مزدور پپو مشین کی زد میں آ کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی، لاش کے باقیات کو اکٹھا کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ گھوٹکی میں سکھر ملتان موٹر وے پر ٹرالر اور کار میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی فیملی DG خان سے کراچی جا رہی تھی۔ اور کمشنر سرگودا ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ واٹر ریٹ کنٹ کی 100% وصولی نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی قسم کا پریشر نہ لیا جائے، سرکاری زمین کی نیلامی کو جلد سے جلد یقینی بنانے کی ہدایت۔ السلام علیکم، کوہی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سونیا میں فری ڈیلیوری پر بھی رشوت طلب کرنے کا انکشاف۔ اسپتال انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے گائنی وارڈ میں ڈیلیوری کے لیے آئی وائی خاتون سے پیسے لیے جانے کے لگے۔ پیسے لینے کی فوٹیج کوہی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون نرس مریضہ خاتون سے 5000 روپے رشوت وصول کر رہی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ڈیلیوری روم کا عملہ خواتین کو پرائیویٹ اسپتال میں ریفر کرنے کی دھمکی دے کر ہزاروں روپے رشوت وصول کرتا ہے۔ دوسری طرف اسپتال انتظامیہ نے ویڈیو منظر عام پر آنے کے باوجود موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لسبیلا میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کو قومی شاہراہ کے ذریعے ملانے والا پل سیلابی ریلا آنے کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام کے مطابق پل کو ہب ندی سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے شدید متاثر کیا۔ پل کے 3 ستونوں کی حفاظتی دیواریں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں، جن کی مرمت اور حفاظتی اقدامات ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ جنرل مینیجر نور الحسن مندوخیل نے میڈیا کو بتایا کہ ٹیکنیکل ٹیم نے ہب ندی پل کا معائنہ کیا ہے، جو مکمل رپورٹ کے آنے تک ٹریفک کے لیے بند کر رہے ہیں، جبکہ ہب ندی پل کی ٹریفک ہب بائی پاس پر منتقل کر دی گئی ہے۔ ٹانک میں بارش نے TMA کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ گلی بازاروں میں 3 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آدم خان کنڈی اپنی اس رپورٹ میں۔ ٹانک میں موسم برسات کے بادل خوب برسے۔ بارش سے TMA کی کلی بھی کھل گئی، تمام بڑے نالے بند تھے۔ سڑکوں پر 3 تا 4 فٹ پانی جمع تھا۔ عوام کو موٹر سائیکل چلانے اور چنگچی رکشوں کے چلانے میں دشواری تھی، کیونکہ نالیوں کا پانی گلیوں اور بازاروں میں نکل آیا تھا،
جبکہ اس موسم سے بچوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور بارش میں خوب مستی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی، ٹانک۔ سیالکوٹ میں بھی گزشتہ چند روز سے وقفے سے مانسون بارشیں جاری ہیں، جہاں ریسکیو کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ اہلکار اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں ہمہ وقت موجود رہے اور پانی میں پھنسے عوام کی داد رسی کر رہے ہیں۔ کہیں یہ ریسکیو اہلکار پانی میں پھنسے لوگوں کی گاڑیوں کو دھکا لگا کر محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں، تو کہیں بارش کے پانی کے باعث بند ہو جانے والے موٹر سائیکلوں کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کے مطابق عمارت گرنے کے 3 واقعات میں ریسکیو کی بروقت کارروائیوں سے 6 لوگوں کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد بشمول ایک بچی کے لاش کو ملبے تلے ریسکیو کیا گیا۔ پشاور میں بھی مانسون کی حالیہ بارشوں میں انتظامیہ متحرک ہے۔ WSSP، PDA اور TMS کے اہلکار شہر بھر کی سڑکوں اور بازاروں میں موجود رہے اور بارش کے پانی کے اخراج کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کمشنر پشاور ریاض خان مسعود اور ڈپٹی کمشنر شفیع اللہ خان نے یونیورسٹی روڈ، حیات آباد، رنگ روڈ، بھٹ بیر، سرکولر روڈ، چار سدہ روڈ اور دیگر علاقوں میں بذات خود نکاسی آب کی کارروائیوں کی نگرانی کی اور فیلڈ سٹاف سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو جلد از جلد پانی کے اخراج کو ممکن بنانے اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ریونیو فیلڈ سٹاف بھی اپنے علاقوں میں موجود رہے اور اپنے علاقوں کے بارے میں لمحہ بلمحہ آگاہی دیتے رہے۔ کمشنر پشاور کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پانی کے اخراج تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان نے اس موقع پر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پشاور کے بیشتر علاقوں میں پانی کے اخراج کو ممکن بنا لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ اور گردنوا کے کئی علاقے بھی بارش سے شدید متاثر۔ گزشتہ رات 1 گھنٹے کی طوفانی بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہوا، لیکن بارش کا پانی ابھی تک سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سول اسپتال، لاہوری محلہ، مچھلی مارکیٹ، اسٹیشن روڈ، باقرانی روڈ اور دیگر علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف کئی علاقوں کی بجلی بھی بند رہی اور علاقہ اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی آب کا بہتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری پانی نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ احمد کمال مان نے مانسون بارشوں کے حوالے سے رنگ روڈ پر ڈسپوزل پلانٹس کا جائزہ لینے کے لیے شہر بھر کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ شہر سے بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے عملی اقدامات کا جائزہ لیں اور سیوریج نظامی کی بحالی سمیت دیگر تمام امور کی کڑی نگرانی کریں تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے بلدیہ حکام کو شہر کے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے فوری انخلاء کے احکامات جاری کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ بارش کے پانی کے نکاسی کے حوالے سے سستی اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوباڑو کے نواحی گاؤں جند وڈو سولنگی میں بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گر گئی۔ مکان میں سوئے ہوئے 6 افراد ملبے تلے دب گئے۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دبے ہوئے افراد کو باہر نکالا۔ زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈھیرکی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے، جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سے گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ نشیبی علاقوں نشاہی بازار، UBL چوک، جامع مسجد چوک، گلاب شاہ چوک، سینما روڈ، چاچڑ محلہ، سبزی منڈی میں بارش کا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار TMO کو گندگی کے حوالے سے شکایات درج کروائیں، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سکھر اور DC گھوٹکی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے باعث PDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق DG خان ڈویژن کے ہل، ٹورنٹ، دریائے چناب اور راوی کے برساتی نالوں میں 24 سے 26 جولائی کے دوران درمیانے درجے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے، جبکہ ضلع میانوالی، اسلح خیل کے پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا امکان ہے۔ کوہ سلمان سال ٹرین سے منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے، جس سے علاقے میں سیلاب آ سکتا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی ہدایت پر میانوالی اور DG خان ڈویژن کے ممکنہ سیلابی علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جا چکے ہیں
तमाम अदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी समेत अमले को हाई अलर्ट रखा गया है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर नादहंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात और कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में भी एसडीओ वाबदा ताहिर हबीब ने कमर कस ली। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। हेस्को चीफ ऑफिसर नूर अहमद सुमरो की खुसूसी हिदायत पर नादहंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। इस सिलसिले में एसडीओ हेस्को गाड़ी खाता सब डिवीज़न ताहिर हबीब की सरबराही में गाड़ी खाता सब डिवीज़न में कनेक्शनों की जांच पड़ताल के बाद सब डिवीज़न में बिजली चोरों के 100 से ज़्यादा लगाए गए कुंडों को मुंतका करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम किए गए। इस मौके पर एसडीओ ताहिर हबीब ने लोगों से अपील की कि वो अपने मुल्क के मफादात को अजीम रखते हुए इन असजात की हिफाजत करें और हेस्को की जानिब से फराहम करदा बिजली की ज़िया को रोकें और बिजली चोरों के खिलाफ हेस्को की हेल्पलाइन पर फौरी इतला दें। इन्होंने कहा कि चूँकि मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है, बावजूद इस हम तमाम तर वसाइल बरकरार लाते हुए अपने शहरियों को बिला तातिल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ताहम आवाम को भी चाहिए कि वो हेस्को का भरपूर साथ दें और बिजली सही तरीके से इस्तेमाल करें और बिजली चोरों के खिलाफ हेस्को से ताउन करें ताकि लोड शेडिंग के दौरानियों को मज़ीद कम किया जा सके। इस मौके पर हेस्को लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इसरार हुसैन सरफराज शानी व दीगर अमला। दानिश शेख की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दुकानों पर 6000 टैक्स लगा दिया गया है, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि जो दुकानें कई अरसे से बंद हैं इनसे भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ताजरों से मशावरत के बाद लाहे अमल बनाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आपने उसके अंदर 6000 रुपये भी और 9000 और 10,000 रुपये का भी किया हुआ। मैं ये समझता हूँ कि कैटेगरीज वाइज जो है इनको अगर लगाना था कि अगर फाइलर और नॉन फाइलर का मसले बसाए गए तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस काम को करना था कि कम से कम जिसका 1000 रुपये से लेके 6000 रुपये तक का जिसका बिल आता है उस पर आप 1000 रुपये लगा दें। हम समझते कोई ऐसी बात नहीं है। जिसका 6000 से लेके 15,000 रुपये तक का बिल आता है उस पर 2000 रुपये आप लगा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर फाइलर नहीं है, फाइलर है, उसके अंदर वो एक्सेस करवा लेगा। इसी तरह 20,000 रुपये से 35,000 रुपये तक का जिसका बिल आता है उस पर 3,000 रुपये लगाते माहाना। तो मैं समझता हूँ कि दुकानदार इजीली कर लेगा, वो उसको फाइलर की तरफ भी चला जाएगा। जो फाइलर नॉन फाइलर है फाइलर में हो जाएंगे और जो फाइलर है वो ऑलरेडी फाइलर तो है। तो सेल टैक्स जो है वो बड़े उस सिस्टम पे आता है कि जो बड़े लोग बड़ा कारोबार कर रहे, मल्टीनेशनल ब्रांड लेके बैठे हैं, वहाँ सेल टैक्स का जमा आता है। ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिसमें आपने 12 लाख रुपए की छूट दी, फिर उसके बाद 6 लाख रुपए की छूट दी। जब 6 लाख रुपए की छूट दी है तो उसके बाद जो वो कमाएगा उसी पे वो टैक्स देगा ना। तो आपने तो जिनके गोदाम है, जिनकी दुकानें बंद है, उनके ऊपर भी 6-6 हज़ार रुपये का जो है लगा के, तो इसको भी देखना होगा। तो के इलेक्ट्रिक किया तो पहले कोई मैकेनिज्म तैयार करे, वफाक से बात करे, उसके बाद के इलेक्ट्रिक को लागू करना था। के इलेक्ट्रिक ने जो है वफाक ने के इलेक्ट्रिक के ऊपर कर दिया और के इलेक्ट्रिक ने जो है प्रिंट आउट करके लोगों को मार्केट में सर्कुलर निकाल दिया। लोग पहले ही कारोबार की वजह से परेशानी में। वज़ीराबाद के इलाके अलीपुर चट्टा में गुज़िश्ता रात सुन्नी तहरीक के अहदेदारों का इजलास सदारत ज़िला रहनुमा और तहसील सदर वज़ीराबाद मोहम्मद जावेद भट्ट ने की। इजलास में 14 अगस्त के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान मोटरसाइकिल रैली की तैयारियों के सिलसिले में मुशावरत की गई और ज़िम्मेदारों को हदफ दिए गए। जमात के नेटवर्क को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, जिस पर शरका ने भरपूर साथ देने और मिलकर मेहनत करने के अज़्म का इज़हार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान मोटरसाइकिल रैली को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने का भी अहद किया गया।
कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर इरशाद अहमद ने चारों अजला के रेवेन्यू अफसरों की कारकर्दगी के जायजा इजलास में वाटर रेट करंट की 100% वसूली ना होने पर बरहमी का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स को 31 जुलाई तक 100% वसूली यकीनी बनाने की हिदायत की। बसूरत दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स की तनख्वाहों से वाटर रेट की वसूली की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि किसी किस्म का प्रेशर ना लिया जाए। उन्होंने नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करने और वागुजार करवाई गई सरकारी ज़मीन की नीलामी को जल्द से जल्द यकीनी बनाने की भी हिदायत की। कमिश्नर ने बाज़ रेवेन्यू अफसरों की तरफ से 1 साल से ज़ायद ज़ेर अल्तवा कोर्ट केसेस का भी नोटिस लेते हुए जल्द निपटाने के अहकाम जारी किए हैं। और यहाँ आपको बताएंगे पीटीआई रहनुमा अंदलीब अब्बास भी पंजाब असम्बली पहुँच गई हैं। तहरीक इंसाफ वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पुरुमीद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ अंदलीब अब्बास के साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जुनेद अशरफ, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन को आप किस तरह देखती हैं मैडम? आज के इलेक्शन को वन साइडेड, ये वो इलेक्शन है जिससे इलेक्शन शुरू होने से पहले लोग भाग गए हैं। ये इसलिए क्योंकि इनका लीडर भगौड़ा है, जिसका लीडर कहीं मेरी जान को खतरा है और सारे ट्रूप्स को छोड़ के लंदन बैठ जाए और कि मैं नहीं आऊँगा, वो गीदड़ होता है। तो अगर सरप्राइज के वाले से भी बात की जाए, किस किस्म का सरप्राइज? बड़ा सरप्राइज होगा, आप देखना 199 हमारे, उनके 0। अच्छा, यही सरप्राइज है? जी बिल्कुल, आपने बात सुनी सरप्राइज के वाले से। उनका कहना था कि 199 हमारे और दीगर के 0 होंगे। जुनेद अशरफ, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरों और साथी से खिताब करते हुए नए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने कहना है कि तलबा को जदीद जॉब मार्केट के मुताबिक तैयार करेंगे और इनको जिम्मेदाराना शहरियत की तरबियत देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी का किसी के वो इल्हाम नहीं रहना चाहिए, किसी मेरे कुलीग के दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ज़िक्रिया साहब को मुझे ये करके ले गए थे, अब काम होगा। और काम का तरीकाकार भी मैंने बता दिया है। बीसी ऑफिस की मैं स्टैम्प भी चेंज कर रहा हूँ। एसी सियालकोट का दौरा सिविल अस्पताल, मरीजों की इयादत, सफाई के इंतजाम और अस्पताल में दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मैसम अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट ने अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया। मरीजों की इयादत, साफ सफाई के इंतजाम और अस्पताल में दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने अस्पताल के डायरेक्टर और दीगर स्टाफ की अच्छी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इसके अलावा अस्पताल में SOPs को मज़ीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए ताकि मरीजों और उनके लायकीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर हो सके। मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। बहावलपुर में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि 26 जुलाई तक जारी रहेगा। रेस्क्यू 1122 ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मानसून का सीज़न जो है ना वो शुरू है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और इसी के रिलेटेड बताता चलूँ कि 21 से लेकर 26 तक वो सेकंड स्पेल है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिशों का जो है ना वो बताया गया है महकमा मौसमियात ने। और इसके रिलेटेड बारिशों की वजह से बहुत सारे एमरजेंसीज़ भी बढ़ रही हैं, स्पेशली जो हमारे लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, वहाँ पे खुदा न खास्ता को गटर डैमेज हो जाता है या किसी का जो होल जो है वो खाली होता है और उसमें भी गिरने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है उस रोड को यूज़ ना करें, उसका अल्टरनेट लें। और साथ साथ जो हमारे गली मोहल्लों में इलेक्ट्रिक पोल हैं, स्पेशली वो उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं, तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि उनको भी टच ना करें और बच्चों को भी इसके रिलेटेड गाइड करें। और साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला मेहरान खान ने मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर ख्वाजा खेला बाजार में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया और आर्जी तजावज़ात हटा दी। AC ख्वाजा खेला ने कहा कि तजावज़ात के खात्मे में ताजर बरादरी इंतजामिया के साथ ताउन करे। तफसीलात अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में।
ڈی سی سوات جنید خان کی خصوصی ہدایت پر خواجہ خیلہ بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ مہران خان، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد ادریس خان، ٹی ایم اے سٹاف ایس ایچ او خواجہ خیلہ سجات علی خان، بما نپری اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق خواجہ خیلہ بازار جو کہ سوات کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز ہے اور اکثر اوقات بازار میں ٹریفک جام کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ خواجہ خیلہ بازار میں ناجائز تجاوزات ہے۔ ڈی سی سوات نے عوام کے بہتر مفاد میں اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ کو ہدایت جاری کی کہ خواجہ خیلہ بازار کو ناجائز تجاوزات سے پاک کیا جائے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھرپور کارروائی کی اور عارضی تمام تجاوزات ہٹا دیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ نے تاجر برادری سے اپیل کی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے علاقے کے لیے کر رہے ہیں، اگر ہمارا علاقہ صاف ہوگا، ناجائز تجاوزات نہیں ہوں گے تو ٹریفک جام نہیں ہوگا، نہ مقامی لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ سیاحوں کو کوئی پریشانی ہوگی، جس کی وجہ سے سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا۔ مہران خان نے تاجر برادری سے اپیل کی کہ وہ ناجائز تجاوزات کے خاتمے میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز تجاوزات کے امجد خان شاپوری کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جنگ میں چھانگلہ ولی موج دریا حضرت رحمت اللہ شاہ بخاری کے 24ویں سالانہ عظیم الشان عرس مبارک کی تقریبات اختتام پذیر۔ عرس مبارک زیر سرپرستی نور محمد اور ملک ممتاز اور زیر نگرانی ملک محمد ارشاد کے ہوا۔ تقریبات کا آغاز قرآن خوانی سے کیا گیا، مزار شریف کو غسل دیا گیا اور چادر پوشی کی گئی۔ پیر سید علی شاہ نے عرس مبارک میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عرس مبارک کی محافل میں پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگوں نے شرکت کی، جبکہ پیر سید علی شاہ نے زیارت بیلا میں بابا چانگلہ ولی موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مزارات شریف پر حاضری دی، چادر اور پھول چڑھائے اور دعا کی۔ بہاولپور میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فضل جاوید خان سے۔ فضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بارش کا سلسلہ کل شام سے جاری ہے۔ 2 دن پہلے بہت سخت گرمی تھی، جس سے اب کل شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو وقفے وقفے سے جاری ہے۔ آج بھی صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے زیادہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بجلی کا نظام بھی دھرم بھرم ہو گیا ہے اور موسم بڑا خوشگوار ہو گیا، لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں ریسکیو 1122 بھی متحرک ہو چکی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز بارش سے گرمی کی شدت میں تو کافی حد تک کمی آ گئی، مگر کچی آبادیوں کے مکینوں کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جس پر علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے سید رسول مدنی سے۔ سید رسول مدنی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کہیں باران رحمت تو کہیں زحمت۔ ملک کے اکثر شہروں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گرمی کی شدت کے بعد گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، مگر شہر میں جاری کئی روز سے گرمی کی شدت سے چھٹکارا حاصل کرنے والوں کے لیے باران رحمت زحمت کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے، کچے مکانات اور دیواریں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز تحصیل پاڑپور کے علاقہ کوٹجائی اور سیدلیاں کی آبادی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس پر 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈی واٹر آپریشن کر کے کنٹرول کر لیا۔ اور یہ جو ہے یہ پانی آپ لوگ کے پہلے سے مسئلہ ہے کہ نہیں ابھی ہوا ہے؟ پہلے کا مسئلہ ہے، دو بار پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس بار میں یہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح کال کی اور وقت پر ریسکیو ٹیم پہنچ کر ہمارا جو پانی کی نکاسی کا ہے وہ کام شروع اور کمروں جس کی وجہ سے ہم نے ریسکیو 112 کو کال کی ہے، وہ وقت پہ پہنچ گئے اور ہماری مدد کی ہے اور ہمارا پانی نکال رہے ہیں۔ ہم ان کے مکینوں نے ریسکیو ٹیموں کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ بارش کے یہ سلسلہ اگر آئندہ چند روز تک جاری رہا تو دریا سندھ کے ساتھ کچے کے علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ
मानसून बारिशों की शिद्दत की वजह से डैमों के साथ साथ दरियाओं और नदी नालों में भी तुगयानी पैदा हो चुकी है, जबकि दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं दरियाए चनाब पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तौकीर मंजूर से। तौकीर, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बात की जाए मानसून बारिशों की वजह से जहां पर डैमों और दरियाओं में पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई है, उसके साथ साथ मानसून बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में जो है वो भी दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी कहा गया है कि वो मौसम की बदलती हुई सूरत हाल और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर फिलवक्त नज़र रखे हुए हैं, जबकि चनियोट पुलिस और रेस्क्यू याराबावी की टीमें जो है वो भी दरिया चनाब पर तैनात हो चुकी हैं ताकि किसी भी जो है वो नागहानी सूरत हाल से फिलवक्त निपटा जा सके। इस वक्त दरियाए चनाब पर हम मौजूद हैं। दरियाए चनाब इस वक्त अपने जोशो खरोश में बह रहा है और पानी की सतह इस वक्त इंतहाई बुलंद है, जबकि नशेबी इलाकों में जो है वो सैलाब का भी खतरा है, जबकि चनियोट पुलिस और रेस्क्यू चनियोट जो है। तौकीर मंजूर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। जहानिया और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मरकजी कब्रिस्तान में बारिश का पानी दाखिल, कपास की फसल भी मुतासर। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम हाशमी की जानिब से शहर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गफ़ार कमर से। गफ़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। दोहानिया शहर में भी मानसून की बारिशों से जहानिया शहर में तूफ़ानी बारिश रात भर से जारी है, जिससे जहानिया शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मौसम तो खुशगवार हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो जो नीले बादल हैं उनको उस वक्त बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। अगर बारिशों के पानी के मैं नुकसानात की बात करूँ तो जहानिया शहर का जो मकामी कब्रिस्तान है, इसकी जो कब्रें हैं वो भी ज़मीन में दनस चुकी हैं। जो जहानिया शहर का सीवरेज का निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। रात भर से जो बिजली भी 18 घंटे हो चुके हैं, बिजली भी नहीं है, जिससे शहरियों को शदीद इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से जो जहानिया शहर की फसलें हैं वो भी शदीद मुतासर हुई हैं। बारिशों कपास में पानी खड़ा होने से इस वक्त जो है उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो कपास का म्यार है वो भी शदीद मुतासर होने का। गफ़ार कमर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं ज़िलाई इंतज़ामिया और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गुजरात के इश्तराक से गुजरात में सहाफ़ियों के लिए दौरानी कवरेज हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने, खुद को महफूज बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जहाँ ज़िला भर के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और रेस्क्यू की तरबियत हासिल की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर इरफान मुगल से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब पे और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है सहाफ़ती कम्युनिटी के हवाले से, और इनको रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैडर प्रोग्राम जो कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की जानब से ये चल रहा है। और इस हवाले से हम पूछ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब, ये हमारी टीम के इंस्ट्रक्टर हैं। इनसे जानते हैं कि आप कौन कौन सी ये ट्रेनिंग दे चुके हैं और अब कौन सा ये मरहला जो जारी है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम सहाफ़ी बरादरी को 4 रोज़ा कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से आज इसका तीसरा रोज़ चल रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इनको मुख्तलिफ़ किस्म की एमरजेंसी से, चाहे वो मेडिकल एमरजेंसीज हों या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई भी एमरजेंसी होती है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, कोई कार्डियक अरेस्ट की फर्स्ट एड करना हो, या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, स्पाइनल इंजरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी हवाले से हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग से उनको एवैक्यूएट करना हो या फिर वाटर रेस्क्यू मैनेजमेंट के हवाले से उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका तीसरा रोज़ है। इंशाल्लाह कल चौथा और आखिरी रोज़ होगा जिसमें इनकी तरबियत को मुकम्मल किया जी बिल्कुल। जी, मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब ने, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने बताया कि आपको अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से सामना करना पड़ता है, जिसमें हाइपर क्लासेमिया, हाइपोक्लासेमिया या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या किसी हेड एंड। डॉक्टर इरफान वर्कशॉप से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं उकाड़ा में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। थाना ए डिवीज़न के हदूद करीम टाउन में घरेलू मुलाजमा बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि 4 माह कबल हाजी सरवर मेरी बच्ची को काम काज के लिए अपने घर लेकर आया था। बच्ची से मिलने के लिए रब्ता किया गया तो मालिक मकान ने टाल मटोल से काम लिया। आज जब मैं बच्ची को मिलने के लिए घर आया, बच्ची का बाजू टूटा हुआ था। बच्ची के वालिद ने कार्रवाई के लिए मुकामी थाने में दरख्वास्त दे दी है। मुतासरा बच्ची के वालिद ने DPO उकाड़ा से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा किया है। सियालकोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना कोतवाली पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश और नाजायज़ असलहा रखने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2210 ग्राम चर्स और असलहा बरामद कर लिया है। SHO थाना कोतवाली शहबाज रजा भल्ली ने
DPO सैयद जिशान, DSP सिटी कैसर अमीन बट की सरबराही में अपनी टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाई। मुलजमान के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओकाड़ा में थाना सिटी का इलाका डाकुओं की अमाजगाह बन गया। डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। हवेली लखा रोड पर 10 मुसल्लह डाकुओं ने 2 डॉक्टरों के घर में घुसकर लूटमार की। डाकुओं ने कसूर रोड पर शहरी से 4 लाख नकदी लूट ली। मज़ाहमत पर ताजिर को गोलियों का निशाना बना डाला। मुलजमान ने गुज़िश्ता रोज़ सब्ज़ी मंडी में भी ताजिरों को दिन दहाड़े फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था और 5 लाख लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। शहरियों का IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला भर के तमाम बड़े अस्पताल शाम के औकात में भी आउटडोर मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने लगे हैं। जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असफंद यार ने भी इलाके की आवाम के लिए मज़कूरा तिब्बी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है, जिसमें मरीजों को चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महबूब अहमद से। महबूब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टीचिंग हॉस्पिटल में इवनिंग OPD का स्टार्ट किया है, जिसके हवाले से इवनिंग OPD में पेशेंट को OPD में चेक किया जाएगा। लेकिन ये जो है टीचिंग हॉस्पिटल जैसे DHQ है फैसलाबाद का, लाइट हॉस्पिटल है। मैं इस वक्त जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ MS डॉक्टर असफंद यार मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये जो OPD स्टार्ट हुई है ये तो टीचिंग हॉस्पिटल में है, लेकिन आप जो है CO हेल्थ के अंडर आते हैं, आपने भी स्टार्ट की, इस हवाले से डिटेल बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से हदायत मौसूल हुई थी कि तमाम जो पंजाब के हॉस्पिटल टीचिंग हैं या DHQ हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर आते हैं, उनमें इवनिंग OPD शुरू किया जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हमने यहाँ पे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक जितने भी हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो इवनिंग की OPD शिफ्ट शुरू की है। और हमारी फार्मेसी भी खुली होती है, जिसमें तमाम तरह जो दिन के औकात में लोगों को मैसर होती हैं वो भी इवनिंग में भी उनको दी जा रही है। जैसा कि MS साहब का कहना है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल में इवनिंग OPD स्टार्ट हुई है, उसी को हम फॉलो करते हुए हमारा जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में भी OPD स्टार्ट की है। इसमें हम पेशेंट को मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं। OPD में इवनिंग में 2 से 8। महमूद अहमद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में रिकॉर्ड बारिशों से मुतासर होने वाला ट्रेनों का शेड्यूल जल्द मामूल पर आ जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फ़ारूक तैमूर गलज़ई ने कहा कि तूफ़ानी बारिशों से पाकिस्तान रेलवेज़ के मुख्तलिफ ट्रैक्स को सख्त नुकसान पहुँचा है, जिससे कई ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में रिकॉर्ड बारिशों से मुतासर होने वाला ट्रेनों का शेड्यूल जल्द मामूल पर आ जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फ़ारूक तैमूर गलज़ई ने कहा है कि तूफ़ानी बारिशों से पाकिस्तान रेलवेज़ के मुख्तलिफ ट्रैक्स को सख्त नुकसान पहुँचा है, जिससे कई ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में रिकॉर्ड बारिशों से मुतासर होने वाला ट्रेनों का शेड्यूल जल्द मामूल पर आ जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फ़ारूक तैमूर गलज़ई ने कहा है कि तूफ़ानी बारिशों से पाकिस्तान रेलवेज़ के मुख्तलिफ ट्रैक्स को सख्त नुकसान पहुँचा है। DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप के फाइनल मैच के इंतजामात का जायजा लिया गया। DC लाहौर उमर शेर चट्टा का कहना है कि सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुल्हिका गुलबर्ग बॉयज़ कॉलेज में पार्किंग के इंतजामात किए जाएंगे। SP मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। बारिश की सूरत में वासा अपना कैंप लगाएगा। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने मजीद कहा कि 2000 पुलिस जवान सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद होटल और दुकानें रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। लाहौर पार्किंग कंपनी को पार्किंग के बेहतर इंतजामात करने की हिदायत की गई है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन से फ्रांसीसी डेवलपमेंट एजेंसी के वफद की मुलाकात। सूबा पंजाब में ADF के तावन से जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर चेयरमैन PND बोर्ड ने सूबा में जारी तरक्याती प्रोग्रामों पर कंट्री डायरेक्टर एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट और इनकी पूरी टीम की काविशों को सराहा। प्रोग्राम मैनेजर AFT SN पराचा ने मुतल्लिका शोबा से मुंसलिक मंसूबों की अपडेट बारे आगाह किया। मुलाकात में सीनियर चीफ PND यासिर मुबीन, असिस्टेंट चीफ महताब यासिन समेत मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए।
اور یہاں ہم کو بتائیں گے محکمہ فوڈ اتھارٹی کا معروف بیکرز اینڈ سویٹس پروڈکشن یونٹ پر چھاپا، زاد المیعاد خام مال کے استعمال پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ سلمان، یہ کون سی معروف بیکری ہے جس کی پروڈکشن پر بند کیا گیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے معروف بیکرز اینڈ سویٹس پروڈکشن یونٹ پر چھاپا مار کر زاد المیعاد خام مال کے استعمال پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی۔ مٹھائی کی تیاری میں ایکسپائر کھلے رنگ اور کیڑے لگی سوجی کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کولڈ سٹور کی گندی دیواریں، خراب اکھڑا ہوا پینٹ اور زنگ آلودہ ٹرے موجود پائی گئی۔ صفائی اور اسٹوریج کے انتہائی قوانین کے خلاف ناقص انتظامات پائے گئے۔ بظاہر دلکش نظر آنے والی بیکری پروڈکٹس کی تیاری کے انتظامات غیر معیاری پائے گئے۔ زاد المیعاد اور ناقص اجزاء سے تیار خوراک انسانی صحت کے لیے متعدد بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کے یکساں نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہر چھوٹے بڑے فوڈ پوائنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی، خوراک میں ملاوٹ یا جعل سازی کرنے والوں کے کاروبار کو بند کر دیا جائے گا۔ جی سلمان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شیخ اپرا لاہور روڈ پر کاغذ بنانے والی فیکٹری میں مزدور مشین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ مزدور پپو کے جسم کی باقیات ریسکیو اہلکاروں نے نکالی۔ جاں بحق مزدور کے لواحقین کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں کوئی سیفٹی سسٹم نہیں ہے، زمین پر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، مشین میں ہمارا بھائی کچلا گیا۔ دوسری طرف پولیس کے مطابق تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ گھوٹکی میں سکھر ملتان موٹر وے پر کار اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی فیملی ڈی جی خان سے کراچی جا رہی تھی کہ گھوٹکی انٹرچینج کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو لاش کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت اظہر حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ حافظ آباد کے علاقہ علی پور روڈ محلہ اسماعیل میں حالیہ ہونے والی بارش کے باعث مکان کی خستہ حال چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 60 سالہ خاتون حمید بی بی جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 112 کی امدادی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ملبے سے نکال کر زخمی شخص کو طبی امداد دی اور جاں بحق ہونے والی خاتون کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ لکی مروت میں افسوسناک واقعہ، سیلابی ریلے میں 2 افراد ڈوب گئے، ایک شخص زخمی ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 سالہ بچی اور 50 سالہ اقبال شامل ہیں۔ حادثے کے شکار 3 افراد موٹر سائیکل پر پانی عبور کر رہے تھے کہ ریلے کی زد میں آ گئے۔ ریسکیو 112 اور مقامی افراد نے رات بھر آپریشن جاری رکھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لکی مروت میں سیلابی ریلے میں 2 افراد ڈوب گئے، ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 سالہ بچی اور 50 سالہ اقبال شامل ہیں۔ حادثے کے شکار 3 افراد موٹر سائیکل پر پانی عبور کر رہے تھے کہ ریلے کی زد میں آ گئے۔ ریسکیو 112 اور مقامی افراد نے رات بھر آپریشن جاری رکھا۔
मर्दान में सीएम टास्क फोर्स और महकमा बाप्टा पेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सियन पेस्को मर्दान का कहना है कि दौरान कार्रवाई 4 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। 80 अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज हैं। ऑपरेशन में 183 कंडे उतार दिए गए हैं। 325 कंडे और 9 टेम्पर मीटर्स भी उतार दिए गए हैं। एक्सियन पेस्को मर्दान ने मज़ीद कहा कि बिजली चोरों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जैकबाबाद में जखरानी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादम, गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा ज़मीन के तनाज़े पर हुआ। जख्मी होने वाला शख्स जखरानी ग्रुप का है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ लवाहकीन के मुताबिक मुलजिम अभी तक कोई भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। फोर्ट अब्बास और गिरदनवा में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। नवाही गाँव 285 HR में चोर किसान के 10 लाख मालियत के 11 बकरे चोरी करके फरार। मुतासरा किसान का कहना है कि चोर रात की तारीखी में दीवार तोड़कर आए और बकरे चोरी करके ले गए। किसान का कहना है कि इसी जगह से पहले भी इसके 2 बकरे चोरी हो चुके हैं, जो पुलिस अभी तक ढूंढने में नाकाम है। मुतासरा किसान का मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। चोरी हुए ने सानू पहले भी कुछ नहीं मिला, तो हुण असीं पता नहीं की उम्मीद रख सकते हैं। असीं उम्मीद नहीं, साड़ी अपील है IG साहब दे नाल, वज़ीर आला पंजाब दे नाल, कोई मेहरबानी की जाए, कोई पुलिस नूं समझाया जाए, कोई सख्ती की जाए, कोई कानूनी तौर पर गरीब लोग साढ़े वसेब दे विच हर आए दिन कोई ना कोई गां दी, मझ दी, बकरियां दी कोई ना कोई चोरी हो रही है। साड़ी आला काम वास्ते अगे अपील है, रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ उत्ते कोई रोकथाम की जाए, नहीं तो आए दिन। पतोकी और गिरदनवा में भी लंपी स्किन वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। किसानों और मवेशी पाल हजरात के लाखों रुपए मालियत के मवेशी बीमार होकर हलाक हो चुके हैं। किसान वैक्सीन ना मिलने के बायस दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मवेशी पाल हजरात का शदीद एहतजाज करते हुए कहना था कि डॉक्टर्स और वैक्सीनेटर्स डिस्पेंसरी नहीं आते। उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक के अमले की नाहली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया है कि हंजराए कलां, हल्ला शेखम और गिरदनवा के तमाम वैक्सीनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है कि हमारे पास लंपी स्किन की वैक्सीन मौजूद नहीं है। टंडुवाला यार आज़ाद राजौनी इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुना का MPA पीपल्स पार्टी इमदाद पताफी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके अंदरूनी सिंध जाने वाली मेन शाहरा ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टंडुवाला यार आज़ाद राजौनी इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुनान का MPA पीपल्स पार्टी इमदाद पताफी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके अंदरूनी सिंध जाने वाली मेन शाहरा को ब्लॉक कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां आज़ाद रजूनी इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुनान का PPMPA इमदाद पताफी के खिलाफ मेन किरिया शाख बाईपास पर एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों कारकुनान ने टायर नजर आतिश करके अंदरूनी सिंध जाने वाली मेन शहरा ब्लॉक कर दी। पीपल्स पार्टी MPA इमदाद पताफी और मकामी पुलिस की मौजूदगी में PP कारकुनान ने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने कहा कि सर आज ये हमारा यूनियन काउंसिल खोखर है, उसमें एक नबी बख्श लाशारी विलेज है, उसमें ये जलसा करने के लिए जा रहे थे। सस्ते में हमारा गांव भी आता है, ज़मीन है हमारी, उसमें 200 घर हैं वहाँ पे, तो वहाँ मार्केटिंग है। जैसे ये गए तो इन्होंने भी नारे मारे, तो जवाब में पब्लिक में भी हमारे हक में नारे मारे। तो इन्होंने वहाँ से गाड़ियों में से उतर कर पुलिस की मोबाइलों के मौजूदगी में, पुलिस से उनके साथ थी, और उतर के लोगों को थप्पड़ मारे हैं, डंडे मारे हैं, ज़ख्मी किया है, और कलेक्शनों के बस्ट मारे हैं वहाँ पे। तो इतनी सारी ज़्यादती पुलिस की मौजूदगी में MPA को अलाउ नहीं है जाके वर्क करें, तो ये सारी दादागिरी है। इतनी ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इनके ऊपर केस करे, पुलिस को भी करे, इनके ऊपर जब तक FIR करके अंदर नहीं करेंगे धरना नहीं करेंगे। इमदाद पताफी MPA था, उनकी टीमें थी, और ज़हीर पताफी हैं, एजाज पताफी हैं, GM पताफी हैं, ये सारे पताफी ग्रुप था। दूसरे भी लोग थे, रैली थी, रैली में 50-60 गाड़ियाँ थी। तो इस किस्म के मामले हुए हैं। इतनी ज़्यादती हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा काम है। मुजफ्फराबाद के वासियों के लिए पहली मरतबा तरक्याती इदारा के ज़ेर एहतमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता
मैयत वैन की सर्विस का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और तरक्याती इदारा ख्वाजा फ़ारूक अहमद ने मैयत वैन की चाबियाँ चेयरमैन तरक्याती इदारा सैयद असर गिलानी के हवाले कर दी हैं। इस मौका पर ख्वाजा फ़ारूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों की बढ़ती आबादी और इस तनासिब से कब्रिस्तान के रकबे की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर जहाँ कब्रिस्तान के रकबे में इजाफे के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है, वहाँ पर बड़े शहरों के लिए 3 मैयत वैन देने का ऐलान किया था, जिसमें सबसे पहले मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए तरक्याती इदारा को ये जदीद मैयत वैन फराहम की गई है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।